Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. So, in yesterday's class, we have discussed pressure and we have derived this equation in terms of one dimension only, that is x dimension, and we have considered a single particle. Now, in today's lecture, we are going to resolve this equation further and we are going to express pressure in terms of kinetic energy of the molecules. So here we have representing that we have represented that this velocity is the x velocity, that the body is moving in x direction only. So this was our particle and it was moving in x direction. So अगर हम एक बॉक्स कंसिडर करें तो इसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं. अब इसमें डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हो सकता है डिफरेंट एक्स डायरेक्शन में मूव करें. एक्स डायरेक्शन तो सेम ही होती है, लेकिन एक मॉलिक्यूल की जगह हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. सो अब जरूरी नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव करें. इसकी वेलोसिटी v1 हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, इसकी 4 हो सकती है, इसकी 5 हो सकती है. And there are number of gas molecules, uncountable. So we can express this equation: pressure is equals to m divided by v, and this velocity vx is v1x, v2x, v3x. Okay, so v1x is the velocity of the particle 1 in x direction, v2 is the velocity of particle 2 in x direction, and v3 is the velocity of the particle 3 in x direction. Now, because I told you that we have number of particles, so we have to express this number in our equation 2. That is why we are going to multiply our mass. So this mass is equals to, you are going to say this mass is equals to mass of one particle multiplied by number of particles. So capital mass क्या हो जाएगा आपके पास, total number of particles का overall आपको हमारे पास क्या देगा, mass के बारे में information मिल जाएगी. So आगे चलते हैं हम. यहाँ तक हमारी इक्वेशन होगी. So अब ये इक्वेशन आ गई है v1 v2 v3. सो हम इसको दोबारा इन टर्म्स ऑफ vx भी लिख सकते हैं. सो v1x, v2x, v3x, vnx. सो एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. यानी जो हमारे पास टोटल वेलोसिटीज हैं उसको हम अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट्स सी आपके पास 100 है, 1000 है, 2000 पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अननोन है हमारे पास, वी डोंट नो द नंबर. So we can express Vx in terms of root mean square velocity. अब यहाँ पे क्या होता है कि हम इस यानी आपका पार्टिकल है, रूट मीन स्क्वायर की मैं रीजन उसको रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है कि आपका पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे बॉल है, उसको स्ट्राइक करेगा तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा. सो दिस पॉजिटिव वेलोसिटी एंड दिस नेगेटिव वेलोसिटी, तो ये दोनों कैंसिल होके आपके पास क्या देंगी, जीरो वैल्यू देंगी. इसलिए वेलोसिटी का जो स्केयर होता है, और जब हम मीन रूट स्केयर वेलोसिटी लेते हैं, सो ये जो नेगेटिव साइन है हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसे इग्नोर कर देते हैं. That is why we are going to use this sign. So Vxk is equals to total number of the particles जिनकी velocities है उनका square divided by n is the total number of the particles. और हम इसको average की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आपके पास average आ जाएगा I is equals to summation sign, I is equals to 1 to n Vix whole square. So this Vix I, what is I going to represent? If I put 1, so it will be 1. If I put 2, it will be 2. If I put 3, it will be 3. And I can go up to n number of the particles. Okay. So if we take the under root of this Vx square, so we get a root mean square velocity. So root mean square velocity क्या हो जाएगी आपके पास, Vx square. So root mean square velocity हम क्यों ले रहे हैं? In order to avoid this cancellation, we are going to take this root mean square velocity. सो वी नो दैट यहाँ तक मैंने आपको रिप्रेजेंट किया एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे थे. नाउ अब हम देखें, आपका बॉक्स है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जरूरी तो नहीं है कि आपके पार्टिकल्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपके पार्टिकल्स वाई डायरेक्शन में भी जा सकते हैं. यानी अगर ये बॉक्स है तो एक पार्टिकल अगर वाई में जा रहा है, एक एक्स में भी जा सकता है, एक आपका जी डायरेक्शन में भी जा सकता है. सो ये जो हमारे पास रूट मीन के वेलोसिटी में हमारा वी है, ये वी एक्स, वी वाई और वी जेड तीनों डायरेक्शन का आपके पास सम होता है.
अब हम अगर कंसिडर करते हैं कि तीनों डायरेक्शंस में ये पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी वी एक्स वेलोसिटी के साथ, वी वाई भी वी एक्स की वेलोसिटी के साथ, और वी जी भी वी एक्स की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सो वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जी, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लें तो ये हमारे पास क्या बना देगा, 3 टाइम्स वी एक्स स्क्र, एंड वी एक्स स्क्र क्या हो जाएगा आपके पास, वी स्क्र डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो इक्वेशन 13.11 है, इसको आपने पुट करना है हमारी मेन इक्वेशन प्रेशर की, और हमें उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू NM डिवाइडेड बाय 3V इंटू आपके पास आ जाएगा V स्क्वायर आ जाएगा। ओके, Vx की जगह हमने वैल्यू पुट की। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया कि PV इज इक्वल टू वॉल्यूम को हमने साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 NM। नाउ कोई भी गैस है, हमें पता है उसकी डेंसिटी होगी, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सो जो आपके पास कैपिटल एम है वो स्मॉल एम टाइम्स एन की इक्वल होता है। तो डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, एम एन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो डेंसिटी को हम इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपने क्या करना है, अब डेंसिटी को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो आपने ये लिखना है कि डेंसिटी की टर्म्स को आपने एक्सप्रेस करके ये डेंसिटी को, और उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है कि P इज इक्वल टू 1/3 NM/V। उस V को मैं यहाँ, ये वाला जो V था इसको मैं नीचे ले आई हूँ, एंड V स्क्वायर। सो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, जो आपकी प्रेशर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/3 डेंसिटी टाइम्स आपका आ जाएगा V स्क्वायर। क्योंकि जो डेंसिटी की टर्म है, ये जो कैपिटल एम है ना, ये स्मॉल एम टाइम्स एन ओवर वी की इक्वल है। सो ये स्मॉल एम एन डिवाइडेड बाय वी आपका डेंसिटी की इक्वल है। सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी टाइम्स वी स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। अगेन ये वो जो मैंने आपको ऊपर स्टेप्स करवाए हैं, इसमें वो शो किए हैं, आपको दोबारा से ये डेंसिटी की टर्म लिखने की जरूरत अगेन नहीं है। Okay, so no need to write this again, this term, sorry, let me switch on my pen. Okay, so no need to write this equation once again. So I have presented you the equation, just write it as I showed you. So in the end, either we can simplify the equation, we can write equation in this form, or either we can write the equation PV is equals to 1/3 NM and V scale. We can express equation in both forms or in both terms. Compact form में भी लिख सकते हैं, उसको आप open करके भी लिख सकते हैं. So no issue. Okay. Now we are going to do the last part, that we have to express this pressure in terms of kinetic energy. Now, if we look at the equation, so we have this pressure P is equals to 2/3 N divided by V into half mv स्केयर। अब ये कैसे हुआ, अभी जो हमारे पास टॉप पे इक्वेशन थी, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इस इक्वेशन से, PV is equals to 1/3 NM into half V square. So let me write this equation once again. So PV is equals to 1/3 NM V square. ये इक्वेशन है। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ताकि मैं इसको किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, वेलोसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकूं। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब आप देखें आपके पास क्या है, सॉरी ये P है आपके पास 1/3 NM, यानी V को मैंने यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मेरे पास क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 N। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ mv स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन में मुझे ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करवानी है। सो N/V बाई रहेगा, M को मैं अंदर ले जाती हूँ, मास इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, एंड mv स्क्वायर। अब मेरे को मुझे क्या चाहिए, मजीद 2। सो किसी भी इक्वेशन में कोई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करवानी हो तो आप क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई भी करते हो और 2 से आप डिवाइड भी करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म हम बाय रख लेंगे, जो डेरिवेशन वाली, जो डिवीजन वाली है उसको मैं अंदर ले जाऊंगी। तो PV इज इक्वल टू 2/3 N डिवाइड बाई V हाफ mv स्क्वायर। तो अब देखें आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसमें जो आपका N डिवाइडेड बाई V है, उसको हम कहते हैं कि ये N नॉट के इक्वल है, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N नॉट के इक्वल, ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो 2/3, सो P किसकी इक्वल हो जाएगा आपके पास, P इज इक्वल टू 2/3
एन नॉट एंड हाफ एम वी स्क्वायर। और ये भी हाफ एम वी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P is equals to 2/3 n naught times kinetic energy at temperature T. So क्या होगा हमारे पास? Pressure depends upon kinetic energy, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सो दैट मीन्स उसका प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी डेरिवेशन आप 2 स्टेप्स में करना सीखें, डिफरेंट फॉर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना सीखें, छोटी छोटी से आप उसकी हेडिंग्स बना लें, और आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस और अपने बाय हैंड हेडिंग्स आपने मस्ट बनानी है। जब हमारी लाइव क्लासेस होंगी कॉलेज में, तो फिर मैं आपका ये टॉपिक चेक करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।